Dear students, today we are going to study about class 7th social science civics chapter 3, how the state government works. In the previous video we discussed about the who are MLAs, work of government, and a debate in legislative assembly. Now, through this video, we discuss about working of the government. In the earlier section, you have read about the debate in the legislative assembly. The members were debating the action taken or not taken by the government. पिछले भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. In common use, the word government refers to government department and various ministers who head them. The overall head is the chief minister. More correctly, this is called the executive part of the government. All the MLAs who gather together assemble in the legislative assembly are called the legislature. इसी तरह से this is because the MLA are together responsible for work. क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो विधायक हैं वो सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में जो गवर्नमेंट वर्ड है तो सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं यानी हेड होते हैं। इन सब सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इनका जो सामूहिक एक चीफ होता है वो क्या है, हेड, वो एक मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है। अगर हम सही मामले में तो ये सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं यानी लेजिस्लेचर कहलाते हैं। दे आर द वन हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। और विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find newspapers, TV channels and other organizations regularly talking about the government, in a democracy. There are various ways through which people express their views
and also take action. Let us look at one such way. यहाँ पर शासन की कार्यप्रणाली के बारे में केवल विधानसभा में ही सरकार के काम की टीका टिप्पणी और सरकार से कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ भी है। Some after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. Large number of people from different newspapers were present. The minister and some government officials were also present. The minister explained the steps the government had taken. Reporters asked many questions at this meeting. These discussions were then reported in different newspapers. The following page has one such as report. यहाँ पर विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचारों में प्रकाशित हुई। During the next week, the Chief Minister and the Minister of Health visited Patalpuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. The government announced the compensation for the families. The Chief Minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean drinking water. He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region. अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की ही नहीं वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी
जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करे और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। As you shall above the people in power like the chief minister, and the minister have to take action. They do so through various departments like the public work department, the agriculture department, the health department, the education department, and so on. They also have to answer questions that are asked in the legislative assembly and convince people asking the questions that proper steps are being taken. At the same time, newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond. For example, by holding the press conferences. जैसा आपने ऊपर देखा कि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पावर में हैं, सरकार में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार के इस कार्य की समीक्षा के दौरान द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉ फॉर द स्टेट regarding sanitation and health facilities, for example. It may make it compulsory for municipal corporations to ensure that there are adequate toilets in every urban area. It may also ensure that a health worker is appointed in every village. This act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. The various government departments then implement these laws. Laws for the entire country are made in the parliament. You will read more about this in the next year about the parliament. सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो।
किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं, यानी संसद द्वारा बनाए जाते हैं। In a democracy, it is the people who elect their representatives as member of the legislative assembly, the MLAs, and thus it is the people who have the main authority. The ruling party members then form the government, and some members are appointed ministers. These ministers are in charge of various departments of the government, such as help in the above example. Whatever work is done by these departments has to be approved by the members of the legislative assembly. लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए को रूप में जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में हमने स्वास्थ्य विभाग का बारे में जाना। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। वॉलपेपर प्रोजेक्ट। वॉलपेपर प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि a wallpaper is an interesting activity through which research can be done on particular topics of interest. The following photographs explain the different aspects involved in creating a wallpaper in a classroom. वॉलपेपर की जो परियोजना है, तो वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है, इंटरेस्टिंग रुचिकर गतिविधि है, जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। एक टीचर, एक शिक्षिका चुने हुए विषय का पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूह में बांट देती है और उस मुद्दे पर चर्चा होती है। ये तय किया जाता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना होगा। इस तरह से हम इस वीडियो के माध्यम से वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से अपनी एक परियोजना भी हम बना सकते हैं। Children work individually or in pair to read the collected material and write their observation or experience. बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठे होकर एक सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को उस पर लिख सकते हैं। They can do this through creating stories, poems, case studies, interviews, etc. और इसके लिए वे कविता, कहानियों